Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15 study note number 1. So in this video we will solve illustration number 12. A factory has key resources, that is bottleneck resources of facility A, which is available for 31,300 minutes per week. So basically in this question the bottleneck resource will be minutes, okay, minutes per week, that is time, factory time is the bottleneck resource. The budget, factory cost and data on two products, that is x and y, are shown below. So basically x and y ये जो दो प्रोडक्ट है उनका उसका इन्फॉर्मेशन दिया है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड मटेरियल कॉस्ट इज गिवन एंड टाइम इन अ फैसिलिटी A. Okay, so time in a facility A. So basically here cell is given, material is given. If we minus this, so we'll get the throughput, right? And this is the bottleneck resource, total bottleneck resource, that is 31,300 minutes. Okay, budgeted factory cost per week. So here other overheads are given. So direct labor, indirect labor, power, depreciation, space cost, engineering, administration. So other overheads are given. The actual production during the last week is 4,750. So final production during the last week is this much of product X and 650 units of product Y. Okay, so this is the actual production X and Y. After that, actual factory cost was 75,250. Okay, so actual factory cost is given 78,250. So this is the question, that is information. After that, calculate total factory cost. Okay, I think this is a standard question for exam because mostly sub questions are asked in this question. So this is a standard question for the exam because एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दिया है और हम लोग को सब क्वेश्चन पूछा है कि ये फाइंड आउट करो, वो रेशो फाइंड आउट करो, या फिर एफिशिएंसी रेशो फाइंड आउट करो, लाइक दैट. So I think this is the better question to understand the different concepts relating to the throughput. Okay, so first of all, calculate total factory cost, which is a very simple question because see, this is the information which is relating to the throughput, right? So we are concerned to calculate here total factory cost. So basically हम लोग को इधर just total factory cost find out करना है. हम लोग को budgeted factory cost बोला है, right? उसका अगर हम लोग ने सिंपली टोटल फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट. सो बहुत सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हम लोग ये जो बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग को जो भी दिया है उसका सिंपली टोटल लेना है, तो हम लोग के पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा. सो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, simply we have to write all this cost and just take total. Okay, so let's start. Is equal to 25,000 plus 12,500 plus 1,750 plus 22,500 plus 8,000 plus 3,500 plus 5,000. Okay, so finally, sorry, it's a 5,000. So finally rupees, we'll take the total 25,000 plus 12,500 plus 1,750 plus 22,500 plus 8,000 plus 3,500 and 5,000. So 78,250. So we are getting 78,250. Okay, see, so we got the first answer, that is total factory cost. In short, we can say it TFC, total factory cost, 78,250. Okay, after that, what is next question? See, cost per factory minute. Okay, so cost per factory minute we have to find out. See, cost per factory minute. Okay, so cost per factory minute मतलब क्या, cost को डिवाइड करना पड़ेगा मिनट से, तभी हम लोग को कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट मिलेगा. सो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना है जो हम लोग ने फाइंड आउट किया. सी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है 78,250. ओके, डिवाइड बाय पर फैक्ट्री मिनट बोला है, राइट, पर फैक्ट्री मिनट. सो सी,
अवेलेबल फॉर 31,350 मिनट्स पर वीक। सो ये जो फैक्ट्री है उसमें अवेलेबल टाइम कितना है 31,300 मिनट्स। ओके, सो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय दिस मिनट्स करेंगे तो कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट मिल जाएगा। ओके, सो डिवाइड बाय 31,300 minutes, 31,300 minutes. Okay, so 78,250 divided by 31,300, it is 2.5. Okay, rupees 2.5, rupees 2.5. So here we got cost per factory minute. See, cost पर फैक्ट्री मिनट्स। सो कॉस्ट हम लोग ने लिखा, उसके बाद फैक्ट्री में कितना टाइम अवेलेबल है उसका मिनट्स लिखा, तो कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट मिल गया। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ दी प्रोडक्ट्स। ओके, सो रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है बोथ दी प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। सी, रिटर्न, रिटर्न मतलब क्या, इधर थ्रूपुट। ओके, क्योंकि बॉटलनेक रिसोर्स बोला है और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ सेल्स एंड मटेरियल कॉस्ट दिया है, तो इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ थ्रूपुट। ओके, सो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है और मटेरियल कॉस्ट दिया है, तो हम लोग को थ्रूपुट इजीली मिल जाएगा और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो बॉटलनेक का है, तो इधर ये जो क्वेश्चन है वो थ्रूपुट का है, वो इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा। सो रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट्स मतलब क्या, थ्रूपुट बेसिकली फाइंड आउट करना है। ओके, सो थ्रूपुट कैसे फाइंड आउट करते हो हम लोग, सेल्स माइनस मटेरियल कॉस्ट। ओके, सो सेल्स क्या दिया है फॉर एक्स 35 एंड मटेरियल दिया है 20, सो इट्स वेरी सिंपल। सो 35 सेल्स माइनस मटेरियल करेंगे तो थ्रूपुट मिलेगा, यानी कि रिटर्न मिलेगा। ओके, डिवाइड बाय, कैसे चाहिए रिटर्न हम लोग को, पर मिनट का चाहिए। ओके, पर फैक्ट्री मिनट। ओके, सो एक्स का पर मिनट कितना है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है एक एक्स बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट्स लगता है। ओके, सो 5 मिनट्स ना, तो हम लोग को वही चाहिए पर फैक्ट्री मिनट। सो डिवाइड बाय 5 मिनट्स। सी, मिनट्स इन अ बॉटलनेक, सो कितना लगता है 5 मिनट्स। सी, 35 सेल्स है माइनस मटेरियल करेंगे तो थ्रूपुट कितना मिला, 15 मिला। सो 15 ये थ्रूपुट है, डिवाइड बाय कितना मिनट लगता है एक्स बनाने के लिए, दैट इज 5। सो कितना मिला फाइनली, ₹3। ओके, ₹3, क्योंकि ये दोनों भी रुपीज़ में है तो आंसर रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हम लोग को रिटर्न पर फैक्ट्री मिनट चाहिए, तो ₹3। ओके, आफ्टर दैट विल कैलकुलेट फॉर वाई इन सेम वे। वाई का जो सेल है वो 35 है और मटेरियल है 17.5। सो सेल इज ₹35 माइनस मटेरियल इज 17.50 डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वाई, that is 10 minutes. Okay, so time required to produce y, it is 10 minutes. So divide by 10 minutes. So it's very simple. 35 minus 17.5 divided by 10, it is 1.75 rupees, 1.75 rupees, 1.75. Okay, okay, so here we have completed question number 3, right? After that, TA, that is throughput accounting ratio for both the products. Okay, so throughput accounting ratio we have to find out for both the products. TA is the short form. So TA ratio यानी कि throughput accounting ratio का फॉर्मूला हम लोग को याद करना होगा। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियोज फॉर्मूला, दैट इज रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट। ओके, रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट फॉर बोथ दी प्रोडक्ट्स वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो रिटर्न पर मिनट हम लोग ने फाइंड आउट किया। सी, रिटर्न पर मिनट कितना है 3। ओके, और कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट कितना है 2.50, हाँ 2.5। ओके, सो रिटर्न पर मिनट यानी कि 3 डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट यानी कि 2.5, दैट इज फॉर एक्स। रिटर्न पर मिनट इज ₹3 डिवाइड बाय कॉस्ट पर मिनट इज ₹2.5।
2.5, rupees 2.5. So basically we have to divide this, so we'll get TA ratio 3 divided by 2.5, it is 1.2. ओके 1.2 दोनों भी रुपीज़ में है तो हम लोग को आंसर भी वैसे ही मिलेगा, दैट इज़ रुपीज़ 1.2. लाइक दैट फॉर वाई. ओके सो वाई का रिटर्न पर मिनट कितना है, रिटर्न पर मिनट 1.75 और कॉस्ट पर मिनट तो वही रहेगा 2.5, तो 1.75 रिटर्न पर मिनट डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 2.5 दैट इज कॉस्ट पर मिनट. ठीक है, कॉस्ट पर मिनट 1.75 डिवाइड बाय 2.5 इट इज 0.7 rupees 0.7. So here we have completed question number 4, that is throughput accounting ratio. We have to by heart this formula. Okay, basically we have to remember this formula. Okay, after that next is throughput cost per week. Okay, so we have to find out throughput cost per week. So for that we require standard minutes of throughput for the वीक. ओके, तो थ्रूपुट कॉस्ट बोला है हम लोग को, पूरे वीक का थ्रूपुट कॉस्ट बोला है, तो उसमें हम लोग को बेसिकली पहले क्या चाहिए, स्टैंडर्ड मिनट्स ऑफ थ्रूपुट फॉर द वीक. क्योंकि हम लोग को जो मिनट्स दिया है वो पर यूनिट का दिया है, हम लोग को जो मिनट्स दिया है वो पर यूनिट का दिया है, हम लोग को चाहिए पूरा थ्रूपुट का कॉस्ट पूरे वीक का. ओके, पूरा थ्रूपुट का कॉस्ट पूरे वीक का, तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, फॉर एक्स एंड वाई दोनों का मिला के, तो एक्स में प्रोडक्शन कितना हो गया, सी एक्स में प्रोडक्शन हो गया 4750. ओके, एक्स का टोटल प्रोडक्शन है इतना और एक्स का एक यूनिट बनाने में 5 मिनट्स लगता है, तो हम लोग को टोटल कितना टाइम लगता है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो 4750 units produced of x multiplied by time required to produce, that is 5, plus production of y is 650 and time required to produce y is 10, so 650 multiplied by 10. Okay, so simply we have to calculate this 4750 multiplied by 5, it is 23,750 plus 6,500. Okay, so plus 6,500 total standard minutes of throughput for the week, मतलब पूरे वीक में हम लोग को 30,250 इतना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, सो हम लोग को मिनट्स तो मिल गया, अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक. सी कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट कितना है 2.50. ओके, कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट कितना है 2.50 और हम लोग ने टोटल मिनट्स कितना यूज़ किया, हम लोग ने टोटल मिनट्स कितना यूज़ किया, सी इधर मिनट्स लिख देते, मिनट्स हम लोग ने टोटल मिनट्स 30,250 यूज़ किया. ओके, और एक मिनट के लिए कॉस्ट कितना आ रहा है 2.5. ओके, total minutes are 30,250 and cost per factory minute which we had calculated, that is 2.50. so basically we have to multiply this 30,250 multiplied by 2.5, so it is 75,625. okay, so 75,625, this is the throughput cost per week. Okay, throughput cost per week. After that last question, that is efficiency ratio. After that last question, that is efficiency ratio. तो efficiency ratio का फॉर्मूला क्या है, throughput cost divided by actual total factory cost multiplied by 100. ओके, सो हम लोग कैसे करते हैं, एक्चुअल डिवाइडेड बाय जो बजटेड सेट किया हुआ रहता है बजट, वो हम लोग करते हैं तो एफिशिएंसी मिलता है. ओके, इसका मतलब हम लोग ने कितना काम किया डिवाइड बाय कितना करना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करके हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं. राइट,
सो एक्चुअल में कितना कॉस्ट आ गया हम लोग का थ्रूपुट का, दैट इज 75,625. ओके, एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज हम लोग को परसेंट चाहिए, डिवाइड बाय कितना बजट सेट किया हुआ था, एक्चुअल टोटल फैक्ट्री कॉस्ट. सी एक्चुअल टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग का कितना दिया है, 78,250. ओके, सो 78,250 एक्चुअल में दिया था. तो हम लोग को एफिशिएंसी समझेगा. सो 75,625 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 78,250, इट इज़ 96.64 या फिर 6, इतना ही लिखा तो भी चलेगा. सो 96.6%. ओके, 96.6%, right? So here we have completed illustration number 12. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.